Hi friends, welcome to DM classes. Today we will continue with practice set 5.2, question number 7. Find the centroids of the triangles whose vertices are given below. First, -7, 6, 2, -2 and 8, 5. सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के, तभी यहाँ पर हमें सेंट्रोइड फाइंड करना होगा। लेट ए x1 y1 इक्वल टू a -7, 6, b x2 y2 इक्वल टू b 2, -2, c x3 y3 equal to c 8, 5. Therefore, by centroid formula, x equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 equal to x1 equal to -7 plus x2 equal to 2 plus x3 equal to 8 divided by 3 equal to 8 plus 2 equal to 10, 10 minus 7 equal to 3 divided by 3, 3 1 जा 3 equal to 1. Therefore, x equal to 1. हमारी x की वैल्यू आ गई 1। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y1 इक्वल टू 6 प्लस y2 इक्वल टू -2 प्लस y3 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6 प्लस -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, 11 minus 2 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। Therefore y इक्वल टू 3। Therefore the coordinate of the centroid are 1, 3. Answer. Second, 3, -5, 4, 3 and 11, -4. Solution. Let a x1 y1 equal to a 3, -5, b x2, y2 equal to b 4, 3, c x3, y3 equal to c 11, -4. Therefore, by centroid formula, x equal to x1 x2 plus x3 divided by 3 equal to x1 equal to 3 plus x2 equal to 4 plus x3 equal to 11 divided by 3 equal to 11 plus 4 equal to 15, 15 plus 3 equal to 18 divided by 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 equal to 6. Therefore, x equal to 6. अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y1 इक्वल टू -5 प्लस y2 इक्वल टू 3 प्लस y3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3
equal to -5 plus 3 plus minus -4 divided by 3 equal to -5 -4 minus plus 5 plus 4 equal to -9 plus 3 divided by 3 minus plus minus 3 minus 9 equal to -6 equal divided by 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 equal to -2. Therefore y equal to -2. Therefore the coordinates of the centroid are 6, -2 answer. थर्ड में हमें पॉइंट गिवन है 4, 7, 8, 4 and 7, 11. Solution. Let a x1, y1 equal to a 4, 7, b x2, y2 equal to b 8, 4 and c x3, y3 equal to c 7, 11. Therefore, by centroid formula, x equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 equal to x1 equal to 4 plus x2 equal to 8 plus x3 equal to 7 divided by 3 equal to 7 plus 4 equal to 11, 11 plus 8 equal to 19 divided by 3, x equal to 19 divided by 3, and y equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3 equal to y1 equal to 7 plus y2 equal to 4 plus y3 equal to 11 divided by 3. Therefore y equal to 11 plus 4 equal to 15, 15 plus 7 equal to 22 divided by 3. Therefore y equal to 22 by 3. Therefore the coordinates of the centroid are 19 divided by 3 and 22 divided by 3. Answer. Question number 8. In triangle ABC G -4, 7 is the centroid if a -14, -19 and b 3, 5, then find the coordinates of C. In triangle ABCG -4, 7 is the centroid. G एक centroid point है जिसके कोऑर्डिनेट -4, 7 है एंड ट्रायंगल ABC के 2 पॉइंट्स हमें गिवन है A एंड B, तो हमें C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सॉल्यूशन. G x, y इक्वल टू G -4, 7 A x1, y1 equal to a -14, -19 b x2, y2 equal to b 3, 5. Let the coordinate of point C be x3, y3. G is the centroid. G एक सेंट्रोइड पॉइंट है, मतलब यहाँ पर हमें सेंट्रोइड फॉर्मूला का यूज़ करना होगा. तो बाय
centroid formula. X equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 equal to x equal to -4, x1 equal to -14 plus x2 equal to 3 plus x3 divided by 3. यहाँ पर -4 के डिवाइड में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 इंटू 3 इक्वल टू -14 प्लस 3 प्लस x3. Therefore, -4 into 3 equal to -12 equal to -14 plus 3 plus x3. Therefore, -12 equal to -14 plus 3 equal to -11 plus x3. अब हमें यहाँ पर x3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो x3 को हम इधर ही रहने देते हैं. x3 इक्वल टू -12, 11 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा. देयरफॉर x3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 12 इक्वल टू -1 तो x3 इक्वल टू -1. अब हमें फाइंड करना है y3 की वैल्यू तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3. Therefore, y equal to 7 equal to y1 equal to -19 plus y2 equal to 5 plus y3 divided by 3. यहाँ पर 7 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखा. अभी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके y3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 21. देयरफॉर 21 इक्वल टू 1 इंटू -19 प्लस 5 -19 प्लस 5 प्लस y3. अब हमें यहाँ पर y3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो y3 को इधर रख देंगे, बाकी सारी वैल्यू को एक से ले जाएंगे. देयरफॉर -21 इक्वल टू -19 प्लस 5 इक्वल टू -14 प्लस y3. Therefore, -21 plus 14 equal to y3. -14 इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया. Therefore, y3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 21 माइनस 14 इक्वल टू -7. तो हमारी x3 की वैल्यू आई -1 एंड y3 इक्वल टू -7. Therefore, the coordinates of point C are -1, -7. Answer. Question number 9. A h, -6, B 2, 3 and C -6, K are the coordinates of vertices of a triangle whose centroid is G 1, 5. Find H and K. Solution. यहाँ हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ए, बी एंड सी. बट यहाँ पर हमें ए में एच और सी में के की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, जबकि हमें सेंट्रोइड जी 1, 5 भी हमें गिवन है. ए x1, y1 इक्वल टू ए h, -6. बी x2, y2 इक्वल टू b 2, 3. C x3, y3 equal to C -6, K. Therefore, centroid G x, y equal to G 1, 5. G is the centroid. By centroid formula,
x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल टू 1 इक्वल टू x1 इक्वल टू h प्लस x2 इक्वल टू 2 प्लस x3 इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर 1 इक्वल टू h प्लस 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर 3 1 जा 3 इक्वल टू h प्लस 2 -6, देयरफॉर 3 इक्वल टू h प्लस माइनस 6 -2 इक्वल टू -4, देयरफॉर 3 प्लस 4 इक्वल टू h, देयरफॉर h इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो हमारी h की वैल्यू आ गई है 7। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर y इक्वल टू 5 इक्वल टू y1 इक्वल टू -6 प्लस y2 इक्वल टू 3 प्लस y3 इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर 5 3 जा 15 इक्वल टू -6 प्लस 3 प्लस k, देयरफॉर 15 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 -6 इक्वल टू -3 प्लस k, देयरफॉर 15 प्लस 3 इक्वल टू k। ये -3 को इक्वल टू को लेफ्ट में से लेके गई तो प्लस का हो गया, देयरफॉर k इक्वल टू 15 प्लस 3 इक्वल टू 18। तो हमारे k की वैल्यू आ गई है 18। देयरफॉर h इक्वल टू 7 एंड k इक्वल टू 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, find the coordinates of the points of trisection of the line segment AB with a 2, 7 and b -4, -8. Solution. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment AB with a, b। अब यहाँ पर देखिए हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 7 एंड -4, -8। तो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइजेक्शन में हमें डिवाइड करना है। तो मान लीजिए दो पॉइंट्स है P एंड Q लाइन सेगमेंट ए बी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें इनके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। A 2, 7 b -4, -8। Suppose the points P and Q trisect segment AB, therefore AP इक्वल टू PB इक्वल टू QB। तो ये PQ लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेट AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB इक्वल टू X। हमने एज्यूम करा कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में। तो इन तीनों को हमने X नाम दे दिया। AP डिवाइडेड बाय PB इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय PB। PB को मैं लिख सकती हूँ PQ प्लस QB, PQ प्लस QB, बिकॉज PQB आर कोलिनियर पॉइंट्स। Therefore AP divided by PB equal to X.
AP इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय PQ प्लस QB। PQ इक्वल टू भी एक्स है और QB इक्वल टू भी एक्स है, इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स 2x, x कैंसल इक्वल टू 1/2। तो पॉइंट P divides segment AB in the ratio 1:2 by section formula। यहाँ पर हमें सबसे पहले रेशो फाइंड करना था, तो हमने P पॉइंट को लेकर रेशो फाइंड किया। तो AP 1 रेशो हो जाएगा, PQ प्लस QB इक्वल टू 2 रेशो हो गए, तो 1:2 का रेशो हो गया। मतलब P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। X कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू M x2 plus n x1 divided by m plus n equal to m equal to 1 into x2 equal to -4 plus n equal to 2 into x1 equal to 2 divided by m plus n means 1 plus 2 equal to 1 into -4 equal to -4 plus 2 2s are 4 divided by 1 plus 2 equal to 3 equal to plus minus 4 minus 4 equal to 0 divided by 3 equal to 0। हमने x कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू m इक्वल टू 1 इंटू y2 इक्वल टू -8 प्लस n इक्वल टू 2 इंटू y1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू -8 इक्वल टू -8 प्लस 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 divided by 3 1 जा 3 2 जा 6 equal to 2। Therefore y coordinate of P equal to 2। अब हमें यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P are 0,2 अब हमें Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए Q एक मिड पॉइंट होगा PB का। यहाँ पर देखिए दोनों को ही Q दोनों PB को 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। देयरफॉर पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q एक मिड पॉइंट है PB का, तो मतलब यहाँ पर हम Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इस फॉर्मूले में x1 प्लस x2 की वैल्यू रखना, जिससे हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें x1 प्लस x2 में वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हमें जो x1 वाली वैल्यू है वो कौन सी है, p के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x1 y1 होंगे और b के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। तो p की हम क्या वैल्यू लेकर आए थे 0,2। तो x1 प्लस x2 मीन्स 0 प्लस -4, क्योंकि x2 की वैल्यू है -4 इक्वल टू 0 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इक्वल टू -2। देयरफॉर x इक्वल टू -2। x कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू -2। अब हम लेते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू
y1 plus y2 divided by 2 equal to y1 plus y2. y1 means 2, y2 equal to minus 8. तो 2 plus minus 8 divided by 2 equal to 2 plus minus 8 divided by 2 equal to 2 minus 8 equal to minus 6 divided by 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. Therefore, y coordinate of q equal to minus 3. Therefore, coordinate of q are minus 2 comma minus 3. Therefore, the coordinate of the points of trisection segment AB are 0, 2 and minus 2, minus 3. Answer. Question number 11. If A minus 14, minus 10, B 6, minus 2 are given, find the coordinate of the point of the points which divide segment AB into 4 parts, 4 equal parts. सॉल्यूशन. हमें यहाँ पर एक ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है. ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है. तो ए बी के पॉइंट्स हमें गिवन है. कोऑर्डिनेट माइनस 14, माइनस 10 एंड बी 6, माइनस 2. और कहा हुआ है कि डिवाइड्स पॉइंट जो कि ए बी सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. मतलब 3 पॉइंट्स आने चाहिए. तो सी डी ई 3 पॉइंट्स हैं. ये तीनों ही पॉइंट्स सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो अब हमें इन तीनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे. तो सबसे पहले हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. क्योंकि डी से देखो, डी से ए की तरफ भी 2 रेशो हैं और डी से बी की तरफ भी 2 रेशो हो रहे हैं. मतलब 2:2 का रेशो बन रहा है. तो यहाँ पर डी एक मिड पॉइंट हो जाएगा. पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट, the midpoint of segment AB. Therefore, by midpoint formula, x coordinate of D equal to x1 plus x2 divided by 2 equal to x1 equal to minus 14 plus x2 equal to 6 divided by 2 equal to minus plus minus 6 minus 14 equal to minus 8 divided by 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 equal to minus 4. Therefore, x coordinate of D equal to minus 4. अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा. तो y कोऑर्डिनेट of D equal to y1 plus y2 divided by 2 equal to y1 equal to minus 10 plus y2 equal to minus 2 divided by 2 equal to minus 10 plus minus minus 2 divided by 2 equal to minus minus plus 10 plus 2 equal to minus 12 divided by 2. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 equal to minus 6. Therefore, y coordinate of D equal to minus 6.
तो हमें यहाँ पर d के x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो d इक्वल टू -4, -6, -4, -6 4 coordinates of d are -4, -6 पॉइंट C। अब यहाँ पर देखिए हमें D के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं -4, -6। अब हमें C और E के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर C और AD के बीच का रेशो देखो 1:1 का है, मतलब C एक मिड पॉइंट है AD का। Therefore point C is the midpoint of segment AD, therefore by midpoint formula। अब यहाँ पॉइंट C के मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए A के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और D के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। x कोऑर्डिनेट of C equal to x1 plus x2 divided by 2 equal to x1 equal to -14 plus x2 equal to -4 divided by 2 equal to -14 plus -4 divided by 2 minus plus 14 plus 4 equal to 18 -18 divided by 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18 equal to -9। Therefore x coordinate of C equal to -9। अब हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड करना है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 मीन्स -10 -6 -10 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -10 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -+ प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16। देयरफॉर यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई -8। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू -8। देयरफॉर coordinate of point C are -9, -8। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है पॉइंट E के कोऑर्डिनेट। पॉइंट E एक मिड पॉइंट होगा DB का, क्योंकि E DB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब E इज अ मिड पॉइंट ऑफ DB। पॉइंट E is a midpoint of segment DB, therefore by midpoint formula x coordinate of E इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमें E के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो E के लिए x1 y1 की वैल्यू होगी D वाली और x2 y2 के लिए वैल्यू होगी ये। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 लिखना है, मीन्स -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -+- 6 - 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 इक्वल टू 1। अब हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ E फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट ऑफ E इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y1 इक्वल टू -6 प्लस y2 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -6 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -+ 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 -8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 6 और 2 दोनों ही माइनस के हैं तो -8 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 4 जा 8
therefore y coordinate of E equal to -4. Therefore coordinates of E are 1, -4. Therefore the coordinate of the points dividing segment AB in 4 equal parts are C -9, -8, D -4, -6 and E 1, -4. Answer. Question number 12. If A 20, 10, B 0, 20 are given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 congruent parts. Solution. If A equal to 20, 10, B 0, 20 are given, find the coordinates of point which divide segment AB into 5 congruent part. एक सेगमेंट AB है, एक सेगमेंट AB है। AB सेगमेंट को कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो C, D, E, F ये चारों पॉइंट्स है जो सेगमेंट ए बी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए इक्वल टू 20, 10 एंड बी इक्वल टू 0, 20। तो अब हमें यहाँ पर सी डी ई एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं कह सकते अभी हम इसे, क्योंकि ये दो मिड पॉइंट हैं, लेकिन हमें इसके लिए इनके पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम रेशो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम रेशो फाइंड किए बिना सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज द पॉइंट सी डी ई एफ डिवाइड segment AB in 5 congruent part. Therefore, AC equal to CD equal to DE equal to EF equal to FB. यहाँ पर जब भी ये जो पॉइंट हमें डिवाइड्स पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स अगर ओड नंबर में हों तो हम पहले मिड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किया था, उसमें हमने 3 पॉइंट्स फाइंड किए थे। जो बीच वाला पॉइंट था वो हमारा मिड पॉइंट हो गया था, लेकिन यहाँ पर इवन पॉइंट से तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें रेशो फाइंड करना होगा। तो रेशो के लिए मैं सबसे पहले सी पॉइंट ले रही हूँ। ए सी डिवाइडेड बाय सी बी, ए सी डिवाइडेड बाय सी बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय सी बी को मैं लिख सकती हूँ सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी, बिकॉज सी डी ई आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड डी ई एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड ई एफ बी आर कोलिनियर पॉइंट्स.
इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट्स को हमने x के इक्वल रखा है, तो यहाँ पर AC इक्वल टू x डिवाइडेड बाय CD DE प्लस EF प्लस FB इक्वल टू x मीन्स x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4x, x कैंसल इक्वल टू 1/4। यहाँ पर हमें AC डिवाइडेड बाय CB के लिए रेशो मिला है 1:4 का। देयरफॉर पॉइंट C सेगमेंट AB में 1:4 का रेशो बना रहा है। C डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio 1:4 by section formula। तो सबसे पहले हम C के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू m x2 प्लस m x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू m n, m इक्वल टू 1 इंटू x2 इक्वल टू 0 प्लस n इक्वल टू 4 इंटू x1 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 1 प्लस 4 इक्वल टू 1 इंटू 0 0 प्लस 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो कितनी वैल्यू आ गई 16 इक्वल टू 16। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू 16। अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू m इक्वल टू 1 इंटू y2 इक्वल टू 20 प्लस n इक्वल टू 4 इंटू y1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 1 प्लस 4 इक्वल टू 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 प्लस 10 इंटू 40 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 12। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू 12। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर 16, 12। अब यहाँ पे देखिए E पॉइंट से C के बीच का डिस्टेंस भी 2 है और E से B का डिस्टेंस भी 2 है, मतलब E पॉइंट C B के बीच में 2:2 का रेशो बना रहा है, मतलब P इज़ द मिड पॉइंट होगा CB का। देयरफॉर E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CB। तो मतलब यहाँ पर हमें E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट ऑफ E इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हमने C के कोऑर्डिनेट अभी फाइंड किए थे 16, 12, तो यहाँ पर जो C के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहाँ पर हमें x1 प्लस x2 चाहिए, मीन्स 16 प्लस 0, 16 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ E इक्वल टू 8। अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट ऑफ E इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 प्लस y2 मीन्स 12 प्लस 20 इक्वल टू 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20 प्लस 12 इक्वल टू 30, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12
Therefore, y coordinate of E equal to 16. Therefore, coordinate of E are 8, 16. अब हमें D के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ देखिए E के कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किया, क्या आया है 8, 16। तो अब हमें यहाँ देखिए D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ CE है, क्योंकि D C से भी एक डिस्टेंस पर है और D और E का डिस्टेंस भी 1 का है, मतलब 1:1 का रेशो बन रहा है। तो यहाँ पर D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ CE है, तो यहाँ पर हम D के लिए भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। D is the midpoint of segment CE x coordinate of D equal to x1 plus x2 divided by 2 equal to, अब यहाँ पर D के लिए x1 y1 C के कोऑर्डिनेट होंगे और x2 y2 E के कोऑर्डिनेट होंगे। तो x1 प्लस x2 मीन्स 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 16 प्लस 8 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल टू 12। अब हमें y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 प्लस y2 मीन्स 12 प्लस 16 इक्वल टू 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12 प्लस 16 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 14। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट of D equal to 14. Therefore, coordinates of D are 12, 14. D के कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किए 12, 14। अब हमें F के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई बी होगा, क्योंकि F ई बी से 1:1 का रेशो बना रहा है, मतलब F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई बी। तो हम यहाँ पर F के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई बी x coordinate of F equal to x1 plus x2 divided by 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर F के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो E के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होंगे और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो x1 प्लस x2 मीन्स 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4। तो हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ F इक्वल टू 4 आया है। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ F इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 मीन्स 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 16 प्लस 20 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 इक्वल टू 18। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ F इक्वल टू 18। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ F आर 4, 18। तो हमें यहाँ पर F के कोऑर्डिनेट में मिल गए हैं 4, 18। Therefore, the coordinates of the points dividing segment AB in
5 congruent. 5 congruent parts are C 16, 12, D 12, 14, E 8, 16 and F 4, 18। तो यहाँ पर हमने इन चारों पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। C, D, E, F चारों पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। यही हमें प्रूव करना था। आंसर। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.